then I decided to start my own startup. The startup name was Startup Buddy, where we start providing the virtual CFO services, because I find that gap between the investor and the startup, where investor want MIS in a particular template, while chartered accountant or the consultant of the startups always believe in giving MIS, which is more relevant towards government rather than investor. However, there is not much difference in our CA language. Whatever we called as a net loss, in investors' eyes, it called burn. So there is some terminology and some formula difference between the government template and the investors template. But I decided to become a bridge between these two, and that journey was very well. So in 2015, we started this company. Overall, in 6 years, we served more than 1,000 clients in Startup Buddy, including Mamaearth, etc., which have now become listed company. We have worked with more than 250 angel investor as well, because we were representing both the sides, investor as well as startups. I started my angel investment journey in 2015 itself, because in the first year of Startup Buddy, we tried to set up another division of investment banking, where we got a mandate from Burger Singh to raise the first check, where they just started. They had a one store at that time. But instead of going out very aggressively, what we decided, we invested ourselves. We 10 friends invested together 10 lakh rupees each, around 1 CR in the Burger Singh. So in a way, we were the first investor for Burger Singh, and that exit happened very well in 2018. My second angel investment was Inner Chef, again a food company, because I thought food is something which will be there everywhere. My third company was Advantage Club, where I invested thrice. Still I am on the cap table of Advantage Club, and now that is Y Combinator, company based out of Delaware. So overall, in last year, 8 years, I invested in around 50 plus company as an angel. So definitely around 6 companies in a year. In 2021, Karan, I decided to set up this fund called Fluid Venture, where we decided to invest at very early stage. Then we start trying to find out the thesis of the fund, and I realized that my background is chartered accountancy, and my partner's background is also chartered accountancy only. So rather than believing on others' expertise, like if we would have decided to invest in the tech company, it means we are dependent on others. We decided to invest in the D2C companies, and there is a wave of D2C as well, where people from tier 2, tier 3 cities want to buy those products which are not available in that particular city. I come from a city called Rohtak, where I see that how these delivery boys are all across the road delivering lots of goods. So that's how I decided to invest in D2C. And my earlier investment like Niman Shoes, PSafe, etc., which were in D2C, those companies are doing extremely well. So that's how we set up the thesis. So Fluid Venture is 50 crore rupees fund, where we have deployed around 33 crore rupees in 10 companies in last 3 years. So this is the entire journey, Karan. I will be happy to take more questions around that from you. Amazing, sir. Super inspiring. So, sir, just a couple of questions. I think, you mentioned that you did 50 companies in about as an angel in about 8 years, right? So, how important it is, in angel investing to be consistent? Like, did you do like 6 every year? या फिर कुछ साल ऐसे थे जिसमें आपने बहुत ज़्यादा किया, कुछ कम किया, capital कम, and so if अगर किसी को अपना portfolio build करना है, so like should they kind of do equal every year? Should they do more in particular years? Should they do more in particular sectors? Like how can one look at portfolio planning as an angel? Definitely consistency is extremely important in any asset class. This is not particularly related to startup investment only. Even if you are investing in gold, or you are investing in mutual fund or any asset class, so building a portfolio is extremely important. And what is being taught in our CA study, that consistency and division of this investment is extremely important. You can't put all the eggs in the same bucket. So definitely you will have to put the eggs in the different assets class. So I always recommend that in this asset class, you should not invest more than 10% of your net worth. First of all, I always recommend to actually calculate your net worth and you decide to invest, because this is the riskiest asset class of
the India at least, if I will not say world, India में तो कम से कम asset class है ही है ये risky. So that's how I always recommend to make a consistency, because that help you to find out the best startup of that particular period. So take an example, I decided to invest 4 companies in a year. So every I try to meet 60-70 companies, find out best of them. Then sometimes some of the friends says, I have already validated this company, why don't you co-invest with us? So on an average करण आप मान सकते हो कि 4 कंपनीज साल की ऐसी होती थी जो मैंने अपने हिसाब से इवेलुएट करी थी, और 2-3 कंपनियां ऐसे आ जाती थी जो किसी के साथ को इन्वेस्ट कर दी. So that's how the journey happens. But definitely consistency is extremely important. Got it. I think जैसे and consistency इसलिए भी because I think like angel investing is very cyclical in nature, right? जैसे जब COVID का time था, companies like EdTech, companies like Zoom were very profitable, travel stocks were going down, companies like Ixigo at one point in time was zero revenue, right? And now, I mean, like travel has bounced back, and companies like EdTech and like companies like Zoom are not as successful, right? So it's important to be consistent to kind of take care of the cyclical nature of the market as well. Right. And sir, आपने I think एक और interesting चीज बोली like about your investment thesis, right? So like obviously you decided that like you want to focus on D2C as an investment thesis and consumer brands. But अगर like as an angel, like if I have to write my investment thesis, like what should be like 4-5 things I should look at to decide कि मैं इन type की companies में like I would like to invest. डेफिनेटली देखिए, थीसिस लिखने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये होता है कि व्हाट इज योर नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट. टेक एन एग्जांपल ऑफ स्टॉक मार्केट अगेन. आई हैव फाइंड 2-3 टाइप ऑफ इन्वेस्टर देयर. सम ऑफ देम आर वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वेयर दे इन्वेस्ट इन द कंपनी एंड दे डिसाइडेड आई विल नेवर सेल these stocks. Maybe the time horizon is more than 10 years. So those investors are called long term investors. There are many investors who want to invest in a company for a year, 2-3 years, where they want that company should grow at a particular level. Then only I will take an exit. There are traders as well, and there are positional traders as well. So we can bucketize the entire investment into four part: daily set of weekly or monthly investment, year to 3 years, and long term investment. The same thing goes with the startup investment as well, that what is your thesis around the investment. First of all, you should be very clear that at what point of time I will take an exit. There are many angel investors who take an exit whenever there is an email from the any follow-on investor that I want to give you an exit. Even if it is less than the primary round, they are happy to take that because they believe that whatever exit is coming, I will have to rotate that money, and I want to be engaged with more and more company. There are many investors who always want to wait for the IPO. So you will find many investors who will say, okay, I want to create a portfolio of 100 companies. I will be happy even if one company will go for the IPO, because that will cover my entire investment of 99 remaining companies. There are many investors like us where we want to invest at angel round, seed round, or pre-series A round, and want to exit at a series B level. So it's again purely depending upon your thesis or your time horizon. But I strongly recommend that if the series B is happening in a company, you should take an exit, because after that you will not get the information. Most of the time in shareholder agreement, it is mentioned that if you will be below 2% of the total equity, you will not get MIS, etc. So there is nothing to do with the startup, and startup is all about the involvement with the startup. So my personal thesis is enter at early stage angel, exit at series B. Then again, I always recommend the first time angel investor कि आप उसी कंपनी में इन्वेस्ट करो where you can correlate the things with your own experience. तो जैसे मैंने बताया कि my first investment was Burger King, तो आप QSR को कनेक्ट कर पाए, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस के अंदर भी है ना, हमने डोमिनोज के साथ काफी काम किया था. जुलियन फूडवर्क वाज माय क्लाइंट एंड आई closely worked with him. I had seen the entire journey of 200 stores to 1400 stores with Domino's as well. So I was able to correlate the future vision of the startup founder with the existing experience. तो अगर आज मेरे पास शायद कोई क्रिप्टो करेंसी की कंपनी आए और मुझे उसके बारे में कुछ एबीसी भी नहीं पता, तो आई वुड लाइक टू अवॉइड दैट, बिकॉज आई विल नॉट बी द राइट जज टू इवेल्युएट. अगर कोई और लीड कर रहा है, मुझे एक छोटा सा चेक डालना है, स्टिल आई विल बी हैप्पी टू सी हु इज इवेल्युएटिंग दैट. तो नंबर 1 लर्निंग टाइम होराइजन के हिसाब से करिए. नंबर 2 लर्निंग आप उसी में इन्वेस्ट करिए जो स्टार्टअप आपको समझ में आ रही है. और नंबर 3 लर्निंग ये है कि आप ये देखिए कि प्रोडक्ट जो है उसका स्केलेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी क्या है.
बहुत सारी बार एज एन एंजल इन्वेस्टर हम स्टार्टअप और बिजनेस के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं. देयर आर मैनी बिजनेसेस विच आर वेरी ल्यूक्रेटिव बिकॉज यू विल फाइंड कि अच्छा इसकी कंपनी की सेल 50 करोड़ है, 10% एबिटा मार्जिन है, तो 5 करोड़ रुपए हर साल कमा रहा है. बट उसके अंदर मान लीजिए साल के अंदर ग्रोथ ही 5% की है. तो टेक एन एग्जांपल कि अगर उसको 50 करोड़ से भी 100 करोड़ तक जाना होगा तो इट विल टेक अराउंड 5-7 years, which will not help you at all as an angel investor. So scalability and growth is extremely important. तो आपको है ना स्टार्टअप और बिजनेस के बीच में डिफरेंस आना चाहिए. एक और इसके अंदर बात ऐड कर देता हूँ. समटाइम्स व्हाट वी कॉल इट एज ए मोट एज वेल और द आईपी, वेयर वी ट्राई टू फाइंड आउट कि कल को इस कंपनी की वैल्यूएशन कैसे बनेगी. क्योंकि एक तो होता है बिजनेस बनना जिसके अंदर आपने कहा कि आज अगर 20 करोड़ की सेल है तो ये 200 करोड़ की सेल बन जाएगी 3 साल में, ग्रोथ हो जाएगी फटाफट. लेकिन अगर कोई एग्जिट आपको देना चाहेगा तो व्हाट वैल्यूएशन ही विल गिव फॉर द IP. So you will have to find the IP, and when I say IP, it doesn't only mean patent and trademark. Sometimes IP is entry level barrier as well. If you have created some brand and you have onboarded many clients in the earlier year itself, so you have created a ring fence for the your competition as well. तो जब आपको एग्जिट मिलेगा तो कोई आपको इसीलिए एग्जिट देगा क्योंकि आपने कहीं पर मार्केट में डेंट किया है, यू हैव कैप्चर्ड सम मार्केट शेयर. तो आप जब तक किसी स्टार्टअप में कन्विंस नहीं हो रहे कि व्हाट इज द आईपी अराउंड दैट व्हिच विल क्रिएट अल्टीमेटली द वैल्यूएशन, you should not invest in the business. Got it. Got it. I think very well said. Decide your time of entry and exit. Invest in companies where you can correlate to. Find scalability in the scalability probability of the company, kitna unka growth rate आना है, and find a moat and IP so that you can get some kind of a valuation in terms of exit. Correct. I think very very relevant. And sir, I think moving on, to my next question. I think ये question बहुत लोगों को होता है कि अगर जैसे आपने भी like almost 50 companies में invest किया as an angel, you also run a fund. So अगर हमें ये समझना हो कि angel investing as an asset class, if you have to compare it with FDs, mutual funds, real estate, stocks, right? So how does it rank in terms of the returns you have seen, or like generally like the average numbers which you see in the market? तो जो आपने कंपैरिजन की बात करी है ना, तो जैसे हम अगर एक रिस्क फ्री एसेट क्लास की बात करें विच इज एफडीज और द बॉन्ड ऑफ सम गवर्नमेंट बॉन्ड एटसेट्रा, तो इसमें जो आपका रिटर्न होता है वो 6 to 10% होता है. जब हम थोड़ी सी रिस्की एसेट क्लास में जाते हैं बट लिक्विडिटी वहां पर होती है विच इज म्यूचुअल फंड और द शेयर मार्केट, वहां पर आपकी रिटर्न टिपिकली 10% से 20% के बीच में आती है ओवर द पीरियड ऑफ 5 years. किसी साल में कम भी रह सकती है, किसी में बहुत ज्यादा भी आ सकती है, बट एवरेज अगर आप कभी भी देखेंगे किसी भी 5 साल की बकेट को उठा के तो इट विल कम बिटवीन 10 to 20% ओवरऑल ऑन कंपाउंडेड बेसिस. रियल एस्टेट की भी लगभग इतनी ही रही है. गोल्ड थोड़ा सा लास्ट तो 2 year में काफी एग्रेसिव गया है बट उसका भी रिटर्न इसी तरह से रहता है अगर आप लंबा होराइजन देखेंगे. स्टार्टअप का जो रिटर्न रहता है दैट इज समवेयर बिटवीन 30% to 45% एनुअली कंपाउंडेड ओवर द पीरियड ऑफ 7-8 years. तो एक तो इस एसेट क्लास का थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपको पेशेंस चाहिए होती है बिकॉज दिस एसेट क्लास ऑलवेज टेक 7 to 8 years टाइम टू बी मैच्योर, क्योंकि आप एक सीड राउंड में इन्वेस्ट कर रहे होते हो और सीरीज भी होने के बाद भी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है इफ यू वांट टू गेट ए राइट काइंड ऑफ रिटर्न. दूसरा इस एसेट क्लास में क्या होता है, देयर इज नो 100% सक्सेस अवेलेबल. थ्योरेटिकली हम यही बोलते हैं कि अगर आप 10 कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, टेक एन एग्जांपल इन 2 years, प्रोबेबिलिटी ये भी है कि 10 कंपनीज की 10 कंपनी भी जीरो हो सकती है. लेकिन व्हाट आई हैव रियलाइज्ड कि अगर हम बड़े ध्यान से इन्वेस्ट करते हैं, टेक एन एग्जांपल ऑफ मी व्हेन आई इन्वेस्टेड 6 कंपनीज इन अ ईयर, आई मस्ट हैव इवैल्यूएटेड मोर देन 200 कंपनीज. So 6 companies out of 200 means 3%. Sometimes after becoming fund manager, in fact, I am investing 0.5% of the total startups which I am evaluating. तो अगर हम इतनी मेहनत करके एक साल में 5 कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, 2 साल में 10 कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो टिपिकली क्या होता है कि 10 कंपनी आपकी जीरो नहीं होती है, तो आपकी 7 कंपनीज के साथ क्या होता है, आउट ऑफ 10 दे बिकम नॉन सक्सेसफुल इन ए वे. I'm not saying non-successful from the business perspective, but आपको उतना अच्छा एग्जिट नहीं मिल पाता कि जिसके अंदर अगर आपने मान लीजिए 20 करोड़ की वैल्यूएशन पर आज इन्वेस्ट किया था तो 5 साल बाद भी वो 25-30 करोड़ पर या 20 करोड़ पर होती है, उसकी कोई आईपी खरीद लेता है
और आपको प्रिंसिपल वापस मिल जाता है, बिकॉज इन शेयर होल्डर एग्रीमेंट ऑलवेज यू टेक द लिक्विडेशन प्रेफरेंस, भाई फाउंडर को सबसे लास्ट में पैसा मिलेगा। अगर मान लीजिए आपने 20 करोड़ रुपए पर 2 करोड़ रुपए भी लगाए सब इन्वेस्टर ने, और उसमें 5 करोड़ रुपए में भी कंपनी बिकी, तो 2 करोड़ रुपए तो सबसे पहले आपको मिलेगा ही। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपके पास 10% शेयर है तो 20 करोड़ का या उस वैल्यूएशन का 5 करोड़ का आपको 50 लाख रुपए मिलेगा। तो यू हैव ए प्रिंसिपल प्रोटेक्शन राइट ऑलवेज अवेलेबल इन एनी स्टार्टअप। तो 10 में से 7 कंपनीज में क्या होता है, किसी में 1.5x, किसी में 2x, किसी में हाफ एक्स, कोई राइट ऑफ करके 7 कंपनीज आपकी बन जाती है ऑन एन एवरेज 7 रुपीज इज इक्वल टू 7 रुपीज। अभी ये मान लेते हैं कि सब कंपनी में 1-1 रुपया लगाया अपन ने 10 कंपनीज में, तो 7 रुपए आपके 7 रुपए बन जाते हैं। फिर उसके बाद जो रिमेनिंग 3 कंपनीज बचती है उसमें आपको एक कंपनी ऑन एन एवरेज 5-6x की रिटर्न दे देती है, एक कंपनी 10 to 15x की रिटर्न दे देती है, और एक उसमें से ब्लॉकबस्टर निकल जाती है जो आपको 15 to 25x की रिटर्न दे देती है। तो थर्ड कंपनी को भी अभी लोअर साइड पे 15 ही मान के चलते हैं, तो 15 + 10 इज इक्वल टू 25 + 5 इज इक्वल टू 30 एंड 30 + 7 जो आपके पास प्रिंसिपल आया था 37। तो मोटा मोटा ये मान लेते हैं कि 10 रुपए जो अपन लगाते हैं वो 40 रुपए बन जाते हैं 8 साल में। तो उसको अगर IRR की टर्म्स में देखेंगे तो आपका लक लोअर साइड पर होगा तो 30% पर एनम आ जाएगा, हायर साइड पर होगा तो 45% पर एनम आ जाएगा। आपने 100 कंपनियों का अपना एक पूरा पोर्टफोलियो बनाया है, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि आउट ऑफ 100 देयर कैन बी वन IPO एज वेल व्हिच कैन गिव यू 100x रिटर्न एज वेल। तो आपने वैसे ही 100 कंपनी में लगाया तो एक ही कंपनी ने आपको प्रिंसिपल वापस दे दिया, हर 10 की बकेट में आपको एक कंपनी 15x की मिलती जा रही है। तो जितना बड़ा आप पोर्टफोलियो बनाएंगे उतना ही ज्यादा अच्छा IRR हो सकता है। And sir, like in your investment journey, like what has been the blockbuster investments that you have made? तो एग्जिट के पर्सपेक्टिव से देखिए करण, तो e-bike वाज द ब्लॉकबस्टर वेयर इन 25 e-bike go. Okay. E-bike go is a model. At that time it was very similar to Jeep Electric. जब हमने इन्वेस्ट किया था 2018-19 में, then they pivoted after giving us an exit because then there was a strategic investment happen in e-bike go. Now they are OEM for the electronic vehicle. उस टाइम पर वो ई व्हीकल खरीद के उसको रेंटल पर देते थे, दैट वाज द बिजनेस मॉडल। तो दैट कंपनी वाज बेस्ड आउट एट अमृतसर, later on they moved to the Pune. So in 25 months itself they gave us a very good 8x exit. So from exit perspective that was the fastest and good return. Infido was also very good exit. We got the exit of 6x in very short span of time, and there are many exits which I have taken over the time. However, if I will have to calculate from the अवेलेबिलिटी परस्पेक्टिव, जैसे एडवांटेज क्लब है, एडवांटेज क्लब अभी मैंने बेचा ही नहीं है, अभी वहां पर वो सीरीज बी तक पहुंच चुका है। तो लेकिन उसको सक्सेसफुल माने क्योंकि नोशनल वैल्यू तो बढ़ती जा रही है, उसकी नेक्स्ट राउंड के इन्वेस्टर आते जा रहे हैं और वो शेयर प्राइस बढ़ता जा रहा है। बट मैं सक्सेसफुल उसको उसी दिन मानूंगा जिस दिन पैसा मेरे बैंक में आ जाएगा। बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि उसमें से एक अकेली कंपनी में से ही 25-30x का रिटर्न आना चाहिए, और उसमें अच्छी बात ये होती है हर 1-1.5 साल में एग्जिट का ऑप्शन भी आ जाता है, बट आई एम कीपिंग इट फॉर द लॉन्ग टर्म। Got it. And guys, please feel free to ask any questions that you may have. You can raise your hands or just type out the questions. Uh, uh, and I think Manav has asked a question, can you please give some examples of moats in your earlier investments like Burger Singh? And इसी में अगर मैं ऐड करूं तो जैसे आपके जो सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट्स रहे हैं उसमें क्या चीजें आपने नोटिस करी हैं जो ट्रेंड्स रहे हैं इन टर्म्स ऑफ आइदर मेट्रिक्स या फिर फाउंडिंग टीम का स्ट्रेंथ या फिर इन टर्म्स ऑफ जैसे मोट मानवास, राइट? ऐसे क्या चीजें नहीं है लाइक व्हिच यू हैव आइडेंटिफाइड कि अगर ये होता है तो लाइक इट काइंड ऑफ लीड्स टू, ऐसा कोई फॉर्मूला है काइंड ऑफ बिल्ड? बिल्कुल। तो कई बार है ना मोड्स में आपका केवल अर्ली मूवर एडवांटेज भी होता है। यू हैव थॉट समथिंग वेरी अर्ली एंड यू हैव onboarded the client at very early stage. Take an example of Burger Singh. At that time burger were only of those nature जो US से इंस्पायर थे। अब बर्गर सिंह ने उसको पंजाबी बर्गर, इंडियनाइज्ड बर्गर बनाने की कोशिश करी एंड दैट वेंट वेरी वेल इन देयर फेवर। तो दैट्स हाउ दैट बिकम मोट फॉर देम, क्योंकि उस नाम से उसको जाना जाने लग गया। तो एक तो नाम को देखे, ब्रांड के नाम से ही पता लग रहा है कि बर्गर सिंह अगर है तो कहीं ना कहीं इसमें इंडिया का फ्लेवर नजर आ रहा है, स्पेसिफिकली पंजाब का फ्लेवर सिंह के वर्ड से नजर आ रहा है। और दूसरा आपने जो चना बर्गर या आपने जितने भी इंडियनाइज्ड बर्गर को वो करना चाहा, तो इंडिया की फूड हैबिट की एक नेचर है कि अगर उसको अपने पसंद का खाना मिलेगा तो वो
डेफिनेटली उसको लेगा। तो अगर हम बर्गर सिंह की पर्टिकुलर बात करें तो दैट इज द मोड। अदरवाइज अगर मैं लेटेस्ट एक कंपनी की बात करूं, लार्क.ai, वेयर दे आर इनटू पोर्टेबल ईसीजी मशीन, तो उसमें पेटेंट ही है बिकॉज विदाउट इंटरनेट दे कैन डू ईसीजी इन द रूरल एरिया एज वेल, सो दैट पेटेंट इटसेल्फ इज ए वेरी गुड थिंग। मास्टर टाउ में देखें तो चाइनीज फूड का एक वो है। कोपारो क्लीन में अगर हम देखें तो केमिकल फ्री, टॉक्सिक फ्री जो प्रोडक्ट्स है, दैट इज देयर मोड बिकॉज दैट इज डिफरेंशिएटिंग देमसेल्फ फ्रॉम द कंपटीशन। तो लार्जली अगर आपके पास इस तरह का एडवांटेज है, यू आर इनटू द नीश प्रोडक्ट वेयर R&D इज रिक्वायर्ड, सो दैट इज द मोड। बट बहुत सारी बार ये भी होता है कि D2C ब्रांच में मोड उतना जरूरी नहीं होता, बट ब्रांड नेम में अभी क्या एफर्ट की जा चुकी है और ब्रांड कम्युनिकेशन कैसा किया गया है, व्हाई द पीपल नो दैट ब्रांड फॉर, तो वो भी आपको एक तरह से आईपी की तरह ही मानना चाहिए। कि अगर आपके माइंड में एक ममाअर्थ का नाम आता है तो आप सोचते हैं कि ठीक है बच्चों के लिए एक सेफ ब्रांड है, तो दैट इज द ब्रांड कम्युनिकेशन, तो दैट हैज बिकम देयर आईपी बिकॉज़ नेम इटसेल्फ हैज ए वैल्यू। आप ओला के बारे में सोचेंगे तो आपको ये है कि कंफर्म है कि टैक्सी आपके पास आएगी और आपका प्राइस वही रहेगा जो है। तो ब्रांड कम्युनिकेशन क्या है उसके अराउंड, दैट इज अगेन आईपी एंड ब्रांड वैल्यूएशन। got it और and at आपने शायद एक मैट्रिक्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछा है yeah. ना, पूरा रिपीट करिए आप मैट्रिक्स के बारे में क्या पूछा था। like any metrics that you like personally look at in terms of either revenue या फिर gross margins or overall profitability, that ये तो होना ही चाहिए कंपनी में before करेक्ट करेक्ट। तो इसको मैं इस मैट्रिक्स को D2C की तरफ रिस्ट्रिक्ट करता हूँ क्योंकि हर सेक्टर की अलग अलग मैट्रिक्स होती है। बट D2C में हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि ग्रोथ रेट कंपनी की क्या चल रही है, वो सब्जेक्टिव है थोड़ा सा। किसी पर्टिकुलर बिजनेस में 5% भी बढ़िया हो सकती है, किसी के लिए 25% भी कम हो सकती है। बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम ये देखते हैं कि ये आइटम जो है ये किस फ्रीक्वेंसी पे बंदा खरीदेगा। इट मीन्स जिसको सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में अपन लाइफ टाइम वैल्यू बोलते हैं कि व्हाट इज द लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ द कस्टमर। I have a company like SK Bag where people buy laptop bags once in a year or once in 2 years. I have company like Master Chow जिसमें आप नूडल्स हर हफ्ते भी खा सकते हो, सोसिस हर रोज भी खा सकते हो। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट कि अगर एक बार कस्टमर एक्वायर कर लिया आपने तो वो कितना आपको वो दे सकता है लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ द कस्टमर। दूसरा उसमें मैट्रिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, क्योंकि आपने एक बार कस्टमर को एक्वायर कर लिया, टेक एन एग्जांपल कि आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू 500 रुपए है D2C में, आपने 1000 रुपए लगा के कस्टमर को एक्वायर कर लिया और आपको पता है कि साल में वो 12 बार खरीदेगा आपसे, तो इसका मतलब एक साल में आप 6000 रुपए की सेल कर पाओगे। तो वो आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या होगा। और अर्ली स्टेज स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट में हम रोआस पर बड़ा फोकस करते हैं क्योंकि ब्रांड क्रिएशन उस टाइम पर होता नहीं, ज्यादातर आपका परफॉर्मेंस मार्केटिंग होता है। तो अगर आपका रोआस बाय चांस 3 से कम है, which means that you are spending on the marketing more than 33% of your net sale, it means that something is wrong. So that is important metrics to see कि ROAS कितना है। Typically 5 is good, 3 is average, 2 is poor. So that's the thing। और दूसरा ग्रोस मार्जिन तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप D2C की बात करते हैं, unless and until you have a 70-80% ग्रोस मार्जिन, you will not be able to survive। और बहुत सारे D2C ब्रांड गलती भी यही करते हैं कि स्टार्टिंग में प्राइसिंग कम रख लेते हैं। एंड आई ऑलवेज एक्सप्लेन देम कि आप प्राइसिंग वही रखो जो आपको कोटिंग के हिसाब से आ रही है। तो टेक एन एग्जांपल, इफ your raw material cost is 100 rupees, so you will have to keep 300 rupees as your MRP। स्टार्टिंग में आपको डिस्काउंट देना है इन्वेस्टर के पैसे से, वो दे दो, बट मैसेजिंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि ये प्रोडक्ट अल्टीमेटली आपको 300 रुपए का मिलेगा, आज नहीं मिलेगा, 2 साल बाद मिलेगा, बट ये 300 रुपए का प्रोडक्ट है जो मैं आपको कुछ डिस्काउंट के साथ 240 रुपए का दे रहा हूँ। तो दैट्स इंपॉर्टेंट, प्राइसिंग उसकी सही हो, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि आज प्राइसिंग कम रख लेंगे बाद में बढ़ जाएगी, वो होता नहीं है इंडिया मार्केट में। आप रिड्यूस ही कर सकते हो स्केल के साथ, लेकिन उस प्राइसिंग को बढ़ा नहीं सकते। तो आपको वो माइंडसेट बनाना पड़ेगा। दूसरा वही लॉजिक आता है कि स्टार्टअप फाउंडर कहते हैं नहीं मेरे कंपटीटर का प्राइस तो 240 रुपये है, मैं 300 रखूंगा तो बिकेगा ही नहीं। तो उसके कारण आप कंपनी के फाइनेंशियल्स को स्क्रू अप कर लेते हो और वो कभी भी है ना यूनिट इकोनॉमी फिट नहीं बैठ पाती। तो वी एज एन इन्वेस्टर अवॉइड दोज कंपनीज वेयर द यूनिट इकोनॉमी इज नॉट अट्रैक्टिव एट ऑल। तो मेरे ख्याल से मैंने 3 चीजें कवर कर दी, रेवेन्यू की ग्रोथ, रोआस आपका और ग्रोस मार्जिन, दैट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। शिपिंग वगैरह पर हम इतना ध्यान नहीं देते क्योंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट वगैरह ओवर द टाइम ठीक हो जाती है, उसमें फर्क नहीं पड़ता। एक और चीज हम इंपॉर्टेंट देखना चाहते हैं हमेशा कि ये जो प्रोडक्ट है या सर्विस है या कोई भी
स्टार्टअप आइडिया है, ये केवल इंडिया तक लिमिटेड है, ये आइडिया ऐसा भी हो सकता है जो इंडिया से बाहर ग्लोबल भी जा सकता है, बिकॉज इन केस देयर इज एन एक्सपोर्ट मार्केट फॉर दैट पर्टिकुलर D2C ब्रांड, फिर आप प्राइसिंग के अंदर और भी एडिशनल काफी चीजें कर सकते हो। got it. I think we have a quite a few questions. So I think एक question जो है कि 2-3 ideas which you can think of could be successful. So according to you, जैसे आज इंडिया में क्या consumer trends हैं, like what are some spaces इसमें like which investors can invest into which are exciting? तो देखो, मैं पिछले एक साल से, एक तो है ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी या सिल्वर ज्वेलरी के ऊपर काफी ब्रांड्स ढूंढ रहा था, बट मुझे हर एक जगह पर जो प्रॉब्लम नजर आ रही है अभी भी यूनिट इकोनॉमी की नजर आ रही है, और थोड़ा सा कस्टमाइजेशन का नजर आ रहा है। तो आई एम वेरी मच श्योर कि जो ये मार्केट साइज है ये बढ़ेगा, लेकिन इसमें एज ए स्टार्टअप दिक्कत क्या आ रही है कि डिजाइन हर हफ्ते बदलते हैं। Fast तो fashion. फास्ट फैशन है, तो उसके केस में क्या हो रहा है कि आपकी इन्वेंट्री वेस्ट हो रही है, तो आप अच्छी तरह उसके अंदर अर्न नहीं कर पा रहे। तो डेफिनेटली वट एवर इज रिलेटेड टू फैशन और द पर्टिकुलरली ज्वेलरी, those trends are going very well. Number two, I am very bullish about anything related to health. आप कोई भी अच्छी चीज जो हेल्थ से कोरिलेट कर सकते हो, रियलिटी में वो हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प कर रहा है, तो दैट विल गो वेरी वेल इन द कंज्यूमर, बिकॉज पीपल हैव स्टार्ट स्पेंडिंग लोड्स ऑफ मनी ऑन द हेल्थ, पर्टिकुलरली आफ्टर कोविड। आप कुछ भी देखिए, लोग स्टैंडर्ड कंज्यूमर FMCG कंपनी में नहीं जा रहे हैं, पुरानी ट्रेडिशनल कंपनीज के अंदर पीपल आर वांट टू ट्राई इन केस इट इज रिलेटेड टू हेल्थ। ग्रूमिंग सेक्टर काफी तेजी से बढ़ रहा है। यू हैव सीन कि जो कंपनीज स्टार्टअप आज से 5 साल पहले मेंस ग्रूमिंग में या शेविंग कंपनी में अच्छा नहीं कर पा रही थी, उनका भी एकदम से बहुत अच्छा पॉजिटिव सेल हुआ है। तो एनीथिंग रिलेटेड टू लुक्स और द ग्रूमिंग थिंग, दैट इज गोइंग वेरी वेल। Beauty and personal care also? Personal care as well, that is going very well. But honestly, health is more attracting us. Got it. तो लेटेस्ट अभी हमने जो इन्वेस्टमेंट करी है दैट इज इन ब्यूटी वाइज। ब्यूटी वाइज इज ए nutraceuticals capsule for the beauty product like anti-aging, hair fall, etc. They are doing very good. Got it. तो मतलब हेल्थ में सप्लीमेंट्स हो गए एंड सर्विसेज आल्सो मे बी लाइक एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर लाइक I am not linking it with the supplements only. Maybe you can think of a bread which is healthy, ओके confectionery item which is healthy, anything related to health. So people are spending कि आप एक ब्रिटानिया कंपनी की ब्रेड 10 साल से खा रहे थे, लेकिन आज हम उसके 2x प्राइस पे, इसमें भी मैं अपनी पोर्टफोलियो कंपनी का एग्जांपल दे सकता हूँ। यहाँ पर स्प्रिंग फूड करके एक कंपनी है मुंबई में, नॉट वेरी बिग बट वेरी गुड कंपनी, वेयर दे आर हैविंग ए ग्लूटेन फ्री फूड। तो अभी केवल उस सेगमेंट में एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि केवल सेलिब्रिटी और उस तरह के लोग ग्लूटेन फ्री खा रहे हैं, बट मुझे पता है कि आज बैट लगाने के बाद 4-5 साल बाद ये मास के लिए बन जाएगा, बिकॉज पीपल विल बी मोर अवेयर अबाउट द बेनिफिट्स एक्सेट्रा। तो एनीथिंग रिलेटेड टू हेल्थ, दैट्स द थिंग। आप छोटा सा एग्जांपल किसी शुगर का ले सकते हैं, समथिंग related to sugar which is related to health, I will be happy to evaluate that. So any small thing, पानी आप देखिए, आज पहले मिनरल वाटर था, अब ब्लैक वाटर है, तो हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी चीज। Got it. I think एक थीसिस तो मुझे समझ आ रहा है कि like you look at fast moving consumer goods FMCG brands, उसमें आप incumbent companies को देखो, उनके प्रोडक्ट को आप कैसे 10x बेटर बना सकते हो, और चाहे प्रीमियम पे भी हो, and then like if you have a customer there, like that's an exciting sector for you to look at. और मैं ना आपको करण एक इसकी भी एक यूनिकनेस बताता हूँ, which I have learned from other VC fund as well. कंज्यूमर का मतलब हमेशा ना ये नहीं होता कि कंज्यूमर जिस चीज को खरीद रहा है, तो अगर हमें कंज्यूमर में स्टार्टअप की डेफिनेशन के अंदर जाना है, स्टार्टअप की डेफिनेशन से मतलब हमें ये टेस्ट करना है कि वेदर दैट इज ए स्टार्टअप और नॉट। आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि ये मैन्युफैक्चरिंग से लिंक है या नहीं है। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई कंपनी आती है और वो कहते हैं कि हम हैंडमेड डिजाइन बनाते हैं किसी चीज के फैशन के अंदर, तो क्वाइट पॉसिबल आई विल बाय डिफॉल्ट एज्यूम दैट दिस इज नॉट ए स्टार्टअप, दैट इज ए बिजनेस। क्योंकि अगर आपके पास 10,000 ऑर्डर इकट्ठे आ गए तो मतलब फिर तो आपको डिलीवरी टाइम देने में उतना टाइम लगेगा ना, यू विल नॉट हैव द रिसोर्सेज अवेलेबल। तो कहीं ना कहीं हमें, जैसे हम टेक कंपनी में टेस्ट करके देखते हैं ना कि ये टेक्नोलॉजी 10 साल आगे की फ्यूचर की है या नहीं है, सेम में कंज्यूमर प्रोडक्ट में ये देखना चाहिए कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग टच है या नहीं है। अगर बहुत ज्यादा कुछ कस्टमाइज्ड है उसके अंदर,
तो वो कंपनी आपकी ग्रो नहीं कर पाएगी। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 10 साल से। कस्टमाइजेशन जरा सा भी आपने डाला उसके अंदर, 20-10% कस्टमाइजेशन है फिर भी ओके है, अगर वो 50-50 कस्टमाइजेशन है देन यू शुड अवॉइड दैट। Got it. Got it. No, super helpful. I think we have a lot of questions around the process of angel investing. You also run real-time angel fund as well. So, sir, I think दो questions. एक, अगर आज किसी को angel investing शुरू करनी है, like what are 3-4 ways on how they can start? And फिर second question मैं बाद में आता हूँ. पहले अगर ये आप maybe you can answer कि आज अगर angel investing के लिए what are some ways available for people to start investing? एंजल इन्वेस्टमेंट करने के देखो दो मेथड है। एक मेथड ये है कि आप कंपनी के फाउंडर से मिले, आपने कंपनी में शेयर्स या डिवेंचर्स, सिक्योरिटी जो भी आपकी डिसाइड होती है, इक्विटी शेयर, कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, आई सेफ नोट या कन्वर्टेबल नोट या कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, ये कुछ टाइप की सिक्योरिटीज होती हैं। तो जो भी कंपनी इशू कर रही है आपने उसको सब्सक्राइब किया, उसका एक शेयर प्राइस होता है, आपने उसको पे किया और आप उसके अंदर शेयर होल्डर बन गए और आपने डायरेक्टली फाउंडर से इंटरेक्ट करना शुरू कर दिया। दैट इज द वन वे ऑफ इन्वेस्टिंग दैट। दूसरा एक मेथड होता है विच इज कॉल्ड नेटवर्क। इंडिया में काफी सारे नेटवर्क्स हैं, इंडिया एंजल नेटवर्क, मुंबई एंजल नेटवर्क, कैरेक्सोफॉर्म एक्सेट्रा, सो देयर आर मल्टीपल नेटवर्क्स अवेलेबल। उसमें क्या होता है कि दे हेल्प यू टू connect with the startups. You may decide to do that. Based on that, they invest in the startup and they take power of attorney from you to take the decision on your behalf. So there is a person who will called as a lead investor and he will decide on your behalf. So it is a kind of PMS where entire things is yours. आपका ही पैन कार्ड यूज हो रहा है, आपके पास ही शेयर है, बट आपके पास डिसीजन मेकिंग नहीं है, क्योंकि स्टार्टअप नहीं चाहता कि मेरी कंपनी में अगर 100 इन्वेस्टर है तो 100 लोग उसका इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले रहे हैं। अब इसी का रिफाइंड वर्जन सेबी ने निकाला विच इज कॉल्ड एंजल फंड, वेयर व्हाट दे सेड कि वीसी फंड में तो क्या होगा कि आपको ब्लैंकेट अप्रूवल देनी पड़ती है। लाइक इन फ्लुएंचर आई डोंट हैव टू गो टू माय 33 इन्वेस्टर्स आस्किंग कि इस स्टार्टअप में इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं। उनके 5 रिप्रेजेंटेटिव हैं, मैं उनसे डिस्कस करता हूं और वो करके अगर मेरा डिसीजन बन जाता है आई इन्वेस्ट इन दैट कंपनी, बाय डिफॉल्ट सबके प्रपोर्शन में पैसा लग जाता है। तो टेक एन एग्जांपल कि अगर 33 इन्वेस्टर्स ने मुझे 1.5 सीआर दिए हुए हैं और अगर एक कंपनी में मैंने एक्स अमाउंट लगाई तो 33 के 33 लोगों का लगेगा। ये नहीं होगा कि 32 का लग गया और एक ने कहा मुझे नहीं लगाना। देयर इज नो चॉइस, दिस इज ए ब्लैंकेट। वो रियल टाइम एंजल फंड की क्वालिटी क्या है किसी भी एंजल फंड की, कि उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। फंड मैनेजर्स आपको बताता है कि ये अपॉर्चुनिटी बड़ी अच्छी है, अगर इस पर्टिकुलर स्कीम में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो स्कीम इज इक्वल टू स्टार्टअप नेम। तो आपके पास एक XYZ स्टार्टअप है और आपने कहा कि नहीं मुझे इसमें तो 5 लाख रुपए लगाने हैं, ये तो मुझे बड़ी अट्रैक्टिव लग रही है, या अगली स्टार्टअप में आपको 2 लाख रुपए लगाने हैं, किसी में 1 लाख रुपए लगाने हैं, किसी में 10 लगाने हैं, तो आप अपने हिसाब से अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हो और आप फंड मैनेजर को कम्युनिकेट कर सकते हो कि इस कंपनी में मैं कितने लगाना चाहता हूँ। और किसी में नहीं लगाना चाहते तो यू कैन सिंपली डिनाई दैट कि आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी। तो इसमें क्या होता है कि एंजल इन्वेस्टमेंट के एक ट्रस्ट में आप पैसा देते हो, आपको स्कीम के यूनिट मिल जाते हैं आपके डीमेट फॉर्म में, और वो कंपनी में जितना पैसा, उस ट्रस्ट में जितना पैसा इकट्ठा होता है, टेक एन एग्जांपल कि 10 लोगों ने 5-5 लाख रुपए दिए तो वो 50 लाख रुपए स्टार्टअप्स को दे दिए जाते हैं आफ्टर डिडक्टिंग चार्जेस एक्सेट्रा, स्टैट्यूटरी कॉस्ट जो भी लगती है। स्टार्टअप के शेयर उस ट्रस्ट की एसेट बन जाते हैं और आपके पास उस ट्रस्ट की यूनिट हो जाती है। तो जब भी वो डिसॉल्व होती है कंपनी या फिर जब वो एग्जिट आता है, तो मान लीजिए 50 लाख रुपीस के अगेंस्ट में 1.5 सीआर आया उस ट्रस्ट के अंदर, तो वो आप जिसने 5 लाख रुपए लगाए थे उसको 15 लाख रुपए का चेक मिल जाता है। हर इंडिविजुअल अपनी टैक्स रेट के हिसाब से, जिसका जो स्टेटस है, जिस स्लैब रेट में वो आता है उसके हिसाब से अपना अपना टैक्स भर सकता है। अगर उसको लगता है कि मुझे ये टैक्स सेव करना है by using section 54 of the income tax act where they can buy residential property against long term capital gain, they can do that as well। मान लीजिए 10 लोगों में से 2 लोगों को टैक्स नहीं भरना है, वो कहते हैं मुझे तो अभी ये फंड की जरूरत नहीं है, मैं इससे घर खरीद लेता हूँ ताकि मेरा टैक्स बचे, तो गवर्नमेंट ने प्रोविजन कर रखा है कि एवरीवन कैन डू हिज ओन टैक्स प्लान। तो ये यही 3 मेथड है करने। Got it, got it. No, I think super relevant. Like जैसे आपने नेटवर्क्स का, so I think to just to summarize, या तो आप एक कंपनी में डायरेक्टली कैप टेबल पे जा सकते हो अगर आपका फाउंडर के साथ रिलेशनशिप अच्छा है, आप फाउंडर को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, आपका चेक साइज बड़ा है इन सम केसेस। सेकंड, आप एक फंड में एक LP बन सकते हो जहाँ पे आप ब्लैंकेट अप्रूवल दे रहे हो, जिसमें जिस फंड कंपनी में फंड इन्वेस्ट कर रहा है आपका उसी प्रोपोर्शन में वो इन्वेस्टमेंट जा रहा है। या फिर आप जैसे एक नेटवर्क लाइक इंडिया एंजल नेटवर्क, मुंबई एंजल, और जैसे अभी हमने एक्सेलरेट में भी अपना शुरू किया है, we did our first deal with RTAF where we invested 36 lakh rupees.
तो you can join a network as well. उसमें आपको मतलब मैंडेटरी नहीं होता कि आपको हर कंपनी में इन्वेस्ट करना है, आपका चॉइस है आप करना चाहते हैं उस स्कीम में या नहीं करना चाहते. And you give the power of attorney to the lead investor that they're investing. They'll take the decision in terms of exit, in terms of managing the day-to-day relationships with the company, and आपको आपने जितना इन्वेस्ट किया उसके रेशो में आपको शेयर्स मिल जाते हैं. सो सर इसमें जस्ट टू आई थिंक ये जो थर्ड वाला प्रोसेस है मतलब थोड़ा सा और इसमें डीप जाने के लिए एक इन्वेस्टर को आज क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं टू स्टार्ट एंजल इन्वेस्टिंग, लाइक व्हाट आर few things that from a legal point of view, regulatory point of view, that are required to start angel investing? तो लीगल पर्सपेक्टिव से एक पैन कार्ड होना उसके लिए मैंडेटरी है, एक डीमेट अकाउंट उसका खुला होना चाहिए, आधार कार्ड उसको देना होता है एड्रेस प्रूफ के लिए. आधार कार्ड ऐसा सच आधार कार्ड नहीं है, बट एड्रेस प्रूफ के लिए आप पासपोर्ट या आधार कार्ड दे सकते हो. दूसरा से भी रिस्ट्रिक्ट करती है किसी को भी एलपी बनने से एंजल फंड में अगर उनकी नेटवर्थ 2 करोड़ रुपए से कम है एक घर छोड़ के. सो दैट इज द रिक्वायरमेंट बिकॉज दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एचएनआई, where they say कि अगर 2 करोड़ से ऊपर की नेटवर्थ है then only you will be treated as a HNI for low purposes. उसके अलावा उनको डिक्लेरेशन लेनी होती है कि आई अंडरस्टैंड द रिस्क ऑफ दिस एसेट क्लास, और उनको कुछ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए. Any student who just came out of from the school, he can't become an LP. So कुछ रेलिवेंट एक्सपीरियंस अपना प्रोफेशन का होना चाहिए ताकि वो इस एसेट क्लास के रिस्क को समझ सके. तो यही रिक्वायरमेंट होती है. तो आफ्टर प्रोवाइडिंग दीज डॉक्यूमेंट्स टू द फंड he can become LP there by signing a contribution agreement, जिसमें सेबी एक बार बोलता है कि आपको 25 लाख रुपीस का कमिटमेंट देना है. हालांकि वो नॉन बाइंडिंग होता है क्योंकि इट अगेन डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस कि आपको स्टार्टअप अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है. बट सेबी वांट टू सी द इंटेंशन. So there is a compulsion कि you will have to sign a commitment letter of 25 lakh rupees. So उसको contribution agreement बोलते हैं. वो जब contribution agreement sign होता है तो गवर्नमेंट के पास आपका पैन कार्ड के बेस पर CKYC होता है. CKYC होते जिस दिन वो हो जाता है उसके बाद आप स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर सकते हो. आपके पास हर स्कीम का एक डॉक्यूमेंट आता है जिसमें लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ दैट स्कीम कि हम कितने चार्जेस लेंगे, क्या करेंगे, प्रॉफिट आएगा तो कैसे बटेगा, ये सब चीजें आप पढ़ते हो, उसको अपना एक्सेप्टेंस या डिनाइड देते हो, आप पैसा ट्रांसफर करते हो और एक एक्स डेट के बाद आपको उसकी यूनिट्स मिल जाती है. Got it, got it. And sir, जैसे आपने ये बताया like to 25 lakh rupees in 5 years या फिर like you have to have some professional experience. ये मतलब ये मैंडेटरी इन्फोर्सेबल होते हैं या फिर ये मतलब बाइंडिंग होते हैं, नॉन बाइंडिंग होते हैं, लाइक एंड अगर सपोज आपका कहीं जैसे आपने किसी में नहीं इन्वेस्ट किया 25 लाख रुपीस 5 इयर्स में एज एन एंजल, तो इसमें फिर क्या एक्शंस ले सकते हैं, लाइक वो जैसे एक्शंस होते हैं? देखिए एक्शन इसके अंदर कोई नहीं है. आपका इंटेंशन था 25 लाख लगाने का, तो सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका सच में 25 लाख रुपीस इन्वेस्ट करने का मन है तभी आप में तभी आप करो, नहीं तो आपका ये पोर्टफोलियो मैनेज बनेगा ही नहीं. मतलब उससे कम में तो आपको सोचना भी नहीं चाहिए इस एसेट क्लास के बारे में. बट फिर भी किसी कारण से टेक एन एग्जांपल की कारण आज आप बहुत एक्टिव हो, आप मान लीजिए अपने नेटवर्क को एग्रेसिवली अपॉर्चुनिटी दिखा रहे हो इस साल में, किसी कारण से नेक्स्ट ईयर आप बिजी हो जाते हो कहीं और आप अपने नेटवर्क को अपॉर्चुनिटीज नहीं दिखा पाते हो, तो उसमें उस फंड इन्वेस्टर का तो कोई वो नहीं है ना. तो सेबी उसको जाके तो नहीं कहेगी कि आपने क्यों नहीं इन्वेस्ट किया. करण ने नहीं भी दिखाई थी आपको अपॉर्चुनिटी या हमें सिंगल ने नहीं भी दिखाई थी, तो भी आपको अपने आप जाके कहीं पर इन्वेस्ट करके आना चाहिए था. तो ये तो फंड मैनेजर का रोल है कि वहां पर वो एंगेज रखें अपने इन्वेस्टर को और उन कोशिश करें कि जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट कमिट की गई है 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ 5 करोड़ पे, उनको उतनी अपॉर्चुनिटी दिखाएं कि वो उस इन्वेस्टमेंट को कर पाए. अगर किसी कारण से वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो सेबी जो क्वेश्चन पूछेगी वो फंड मैनेजर से पूछेगी कि आपने उनको इतनी रिलेवेंट अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं दिखाई कि आपके इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं इसके अंदर. तो वो है. गॉट इट, गॉट इट. क्योंकि आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, सेबी इज ऑलवेज इन्वेस्टर फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन, नॉट ए फंड मैनेजर्स फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन. Interesting. Great. I think Arun has a question. What details about startups are provided, and can we get access to company in financials after investment? ठीक है, तो करण ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप इसका आंसर करो कि जब आप अपने इन्वेस्टर्स को दिखाते हो क्या चीजें दिखाते हो, क्योंकि मेरा दिखाने का स्टाइल और आपका दिखाने का स्टाइल बिल्कुल अलग हो सकता है. Correct. So Arun, if I were to answer, so हम लोग
हमारा जो प्रोसेस है, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम फाउंडर्स के साथ 6 महीने 1 साल काम करते हैं। उसके बाद ही हम उस अपॉर्चुनिटी को अपने नेटवर्क में ओपन करते हैं। तो माय फर्स्ट थिंग दैट आई डू इज आई डू अ पॉडकास्ट विद द फाउंडर वेयर आई व्हिच आई पब्लिश ऑन यूट्यूब एज पब्लिक इन्फॉर्मेशन कि उनका कितना रेवेन्यू रहा है, करंट ट्रैक्शन क्या है, क्या ग्रोथ रेट रहा है, पिछले 3-4 साल का क्या हिस्ट्री रहा है। उसके बाद हम एक कंपनी का आईएम बनाते हैं जिसमें उनके लास्ट 3 साल के फाइनेंशियल्स, उनका जिसमें उनका जितने भी उनकी ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट्स हैं वो सारा पब्लिश्ड है, उनका क्रॉस मार्जिन्स, पूरा प्रॉफिटेबिलिटी, उनका मार्केट क्या है, उनका टेक मोड क्या है। सो वी पब्लिश लाइक अ 3-4 पेज इन्वेस्टमेंट मेमो व्हिच इज शेयर्ड विद द इन्वेस्टर्स। उसके साथ कंपनी का डेक होता है। जब वो पब्लिश हो जाता है और उसके बाद एक इनिशियल इंटरेस्ट आता है, तो हम जनरली कंपनी फाउंडर के साथ एक ग्रुप कॉल करते हैं फॉर द एंटायर लाइक ऑल सेट ऑफ इन्वेस्टर्स हु आर इंटरेस्टेड, एंड देन इसेंशियली फाउंडर्स लाइक इन्वेस्टर्स कैन आस्क ऑल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस टू द फाउंडर। एंड अगर एक इन्वेस्टर को लगता है कि दे आर कीन इन इन्वेस्टिंग, एंड वो फिर हमारे पार्टनर्स है RTAF जिनके थ्रू हम इन्वेस्ट करते हैं। And after the investment, obviously they can track their investment on RTAF as a platform. RTAF एक टेक प्लेटफॉर्म है बैकर जहाँ पे वो ट्रैक कर सकते हैं, उनको यूनिट स्टेटमेंट्स वगैरह मिलती हैं। और उसके अलावा हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं फाउंडर के साथ, वेयर एसेंशियली फाउंडर्स गिव्स क्वार्टरली अपडेट टू ऑल द इन्वेस्टर्स। इसके साथ में हम इंकरेज करते हैं टू ऑल द इन्वेस्टर्स टू बी मोर एक्टिव विद द फाउंडर। तो अगर हम मीटअप्स कराते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, सो दैट यू कैन मीट विद द फाउंडर मोर, यू कैन हेल्प देम ग्रो एंड यू कैन ऑल्सो लर्न अबाउट द इंडस्ट्री। एंड या आई मीन लाइक हमारे तरफ से तो सर ये प्रोसेस है। लाइक यू टेल मी, इज दिस लाइक कुछ मैंने मिस किया या लाइक ऑलमोस्ट सबका यही प्रोसेस है। मैं बस इसमें अपना प्रोसेस ऐड कर देता हूँ कि हमारे यहाँ टिपिकली क्या होता है कि हमने एक वेबसाइट बना रखी है, वहां पर स्टार्टअप्स अप्लाई करते रहते हैं। ऑन एन एवरेज हमें 100 एप्लीकेशंस मिलती है महीने की। एक स्क्रीनिंग टीम होती है एनालिसिस्ट की, वो लोग उसमें से सिलेक्ट करके 20 स्टार्टअप्स को ऑलमोस्ट एक महीने में पार्टनर्स को दिखाते हैं। पार्टनर्स लेवल पे डेलिब्रेशन होता है, उसमें से 20 में से 8 कंपनीज के आसपास IC में जाती है, इन्वेस्टमेंट कमेटी के पास। फिर इन्वेस्टमेंट कमेटी उस महीने की 2 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट करती है, बाकियों को होल्ड पर डाल देती है और उनको ट्रैक करने को बोलती है हमें। और 2 कंपनीज को फिर हम फोर्टनाइटली बेसिस पर सैटरडे को 11 बजे लार्ज ऑडियंस को, जिन्होंने भी हमारे साथ कंट्रीब्यूशन एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, उनको हम जूम कॉल पर दिखाते हैं। और वो उसकी रिकॉर्डिंग बाद में भी सुन सकते हैं अगर वो अवेलेबल नहीं होते हैं। उसके बेस पर वो हमें बताते हैं कि इस कंपनी में मैं 1 लाख लगाना चाहता हूँ या 10 लाख या नहीं लगाना चाहता। वो अपने फीडबैक भी देते हैं, उनके फीडबैक के बेस पर हम डिसाइड कर लेते हैं कि क्या है। फिर उनको कॉल फॉर मनी जाता है, वो पैसा ट्रांसफर कर देते हैं हमारे बैंक अकाउंट में, हम स्टार्टअप को इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये वाला प्रोसेस है। तो थोड़ा सा जैसे आप तो डीपली इन्वॉल्व हो स्टार्टअप्स के साथ, हम थोड़ा सा फंड मैनेजर वाली तरह से उसमें काम करते हैं। Got it. And I think somebody has a question on the ticket size. So आपका कितना टिकट साइज होता है और एज एन एंजल कितना टिकट साइज अच्छा होता है? लाइक मिनिमम कितना होता है, मैक्सिमम आपको कितना करना है? आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि अगर आप है ना 1 साल में 5 कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लाख रुपए हर कंपनी में इन्वेस्ट करें कंसिस्टेंटली, और 5 कंपनीज में 10 लाख रुपए से एक अपना पोर्टफोलियो बनाना शुरू करें और धीरे धीरे करके इसको बढ़ना है। तो 2 लाख रुपीज इज ए गुड अमाउंट। Got it. वैसे लाइक कुछ ऐसा मिनिमम अमाउंट भी होता है कि लाइक इसके या 2 लाख इज टिपिकली अगर हम रियल टाइम की बात करें तो 1 लाख रुपए से शुरू होता है। इफ समवन वांट टू इन्वेस्ट 1 लाख रुपीस एज वेल, दैट इज आल्सो अलाउड। बट आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि अगर 1 लाख रुपए का 5 साल बाद लेट्स से 4 लाख रुपए मिल भी गया आपको, तो वो उतना एक्साइट नहीं करेगा आपको, तो डेल्टा नहीं होगा वो फिर कुछ नहीं होगा। और उससे क्या होगा कि आप बहुत ज्यादा स्प्रेड कर लेंगे अपने उसको, तो आपके पास नेगेटिव न्यूज ज्यादा आएंगी, पॉजिटिव कम आएंगी। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि अगर आप शुरू कर रहे हैं तो मिनिमम 2 लाख रुपीस पर कंपनी तो स्टार्ट करें एटलीस्ट। Got it. I think somebody has a question. They're saying my name is Pallavi and very informative session. I am also a CA 2015 batch, specializing in stat and internal audit. You studied about investments exits between 2007 and 2015. What did you study? Did you do some course? No. I studied means I learned from the companies where I was the statutory or internal auditor. As I mentioned that Capital 18 is the investment arm of the Network 18 group, which is a media channel. So there is a separate arm where there were 4 or 5 people in that particular subsidiary who their role was to invest in the startup like Book My Show. They invested in multiple companies. What they realized is there are some companies who are very means professional
companies where there are professionals in the finance, while there are some small companies where the team is not so good, so they appointed me as an internal auditor. So what I find कि मेरे पास कुछ clients ऐसे थे बड़े MNC वाले, जिसमें मैं कभी फाइनेंस मैनेजर से ही बात करके मुझे एसओपीज के थ्रू पता लग जाता था कि इस कंपनी में क्या करना है और ये एक्टिविटी है और ये ऑडिट करना है। इन कंपनीज में क्या होता है, आपको थोड़ी छोटी छोटी चीजों के लिए फाउंडर से बात करनी पड़ती है। तो उस तरह से मैंने 2007 से लेके 2013 तक इतने सारे फाउंडर से जब इंटरेक्ट किया, तो मेरे थोड़ा पता लगना शुरू हुआ कि ये एक वर्ड होता है यूएस का जिसको स्टार्टअप बोलते हैं, और ये स्टार्टअप में रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड होते हैं, पैसा होता नहीं है और खर्चे बहुत होते हैं। तो उसके अंदर कैसे फ्रूगल तरीके से एक कंपनी को चलाया जाता है, और स्केलेबिलिटी का प्रेशर होता है फाउंडर के ऊपर। इन्वेस्टर थोड़े से पैसे देके उससे खूब सारी रिपोर्टिंग मांग लेता है। तो इसीलिए हमने टैगलाइन स्टार्टअप बड़ी की रखी, यू फोकस ऑन योर बिजनेस, वी विल टेक केयर ऑफ योर फाइनेंस। सो दैट्स हाउ I decided in 2015 to come on the other side of the table, where earlier I was the statutory auditor or the internal auditor for the companies. Now I decided कि let's become virtual CFO for that company. Let's closely work with the founders. I have given the example of Varun Alagh as well. When at the initial stage 1.5 years, we had a detailed discussion कि इसका प्रोसेस कैसे बनाए, रिम्बर्समेंट का प्रोसेस कंपनी में कैसे बनेगा, सैलरी प्रोसेस कैसे होगी, PFASI के 5 मेथड होते हैं, कौन सा मेथड यूज करना है। तो व्हेन यू क्लोजली वर्क विद द फाउंडर एंड वर्क विद देम ना, तो आपका वो लर्निंग कर्व थोड़ा फास्ट हो जाता है। सो दैट्स हाउ आई लर्नड। देयर वाज नो बुक, इनफैक्ट बिफोर 2016 देयर वाज नो वर्ड कॉल्ड स्टार्टअप इन द इंडिया एज वेल। तो स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया 16 जनवरी 2016 को आया। और एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, मेरे तो सब रिलेटिव्स को लगा कि ये जो नारा है वो स्टार्टअप बड़ी मेरी कंपनी का कोई कुछ हो गया है, जो सरकार उसकी बात करने लग गई है। तो पहले तो किसी को समझ ही नहीं आया कि ये अमित 2 साल से बोल रहा था स्टार्टअप बड़ी कंपनी उसने खोली है ASR के बाद, तो उनको लगा कि गवर्नमेंट ने कुछ स्टार्टअप बड़ी के अंदर कर दिया। तो ये वर्ड समझने में लोगों को 2-4 साल लग गए थे। I think one takeaway is कि if you have to learn about angel investing, then the best way to learn about angel investing is to start investing. So like once you will get into it, like I think that is the best learning. देखिए, वो कोई भी चीज को ले लीजिए, अगर मैं आज स्टार्टअप की बात कर रहा हूँ तो मैंने स्टार्टअप बड़ी बनाई, आई लर्न द एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम देयर। इवन सीए प्रैक्टिस वाज आल्सो अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, बट देयर वाज नो प्रेशर ऑफ द स्केलेबिलिटी देयर। नो वन हैड आस्क्ड मी अ क्वेश्चन बिकॉज़ वी टुक सम एंजल इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप बड़ी एज वेल, and in fact UVCAN was one of the investor in startup buddy. So when you have an investor, you have a pressure to show the scalability as well. तो आपको पहले स्टार्टअप के बारे में सीखना है, तो भी आपको उसके अंदर घुसना ही पड़ेगा। आपको एंजल इन्वेस्टमेंट करनी है तो भी आपको उसको करके ही सीख सकते हो। आप बाहर से देख के क्रिकेट की तरह नहीं हो सकता कि आप देखते देखते एंटरटेन कर लो। अगर आपको पार्ट बनना है तो उसमें छोटे चेक से बड़े चेक से उसका इंटीग्रल पार्ट बनना ही पड़ेगा। Yeah, for sure. Great. Guys, any other last questions? Perfect. Sir, thank you so much for your time. I just want to take the group through Accelerate. तो आप चाहे आप log off कर लो. I'll just take 4-5 minutes more. And really appreciate your time. Sorry, मैं आपको बहुत टाइम से बोल रहा था इस सेशन के लिए, but that's good. You changed me. That's how we are here as well. And I will give a last recommendation as well. आपने किसी ने बुक की बात करी तो उससे मुझे याद आया, आज के दिन बुक तो नहीं, बट मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करता हूँ कि Amazon प्राइम पर एक प्रोग्राम है मिशन स्टार्ट अप करके, आलिया भट्ट ने लॉन्च किया था उसको। मेरी पोर्टफोलियो कंपनी रीडिजाइन, दे वर द विनर फॉर इन दैट प्रोग्राम एज वेल। बट मुझे वो 7 एपिसोड उसके बड़े रेलिवेंट लगते हैं, क्योंकि हम मोस्टली शार्क टैंक जैसे प्रोग्राम्स देखते हैं जिसमें आपको ये दिखाया जाता है कि 20 मिनट में फंडिंग हो जाती है, विच इज गुड। दैट इज फ्रॉम लर्निंग परस्पेक्टिव इट इज गुड बिकॉज लोट्स ऑफ कंटेंट इज देयर। बट उस 7 घंटे के एपिसोड के अंदर मेरे हिसाब से पूरी स्टार्टअप की जर्नी दिखा रखी है, और उसमें सब कुछ चैलेंजेस बता रखे हैं। तो बीइंग एन एंजल इन्वेस्टर, अगर आप उन चैलेंजेस को समझने की कोशिश करेंगे तो उसके बाद जिस भी स्टार्टअप से मिलेंगे, तो जो चैलेंजेस उसके अंदर दिए गए थे प्रोग्राम में, आप उनको प्रैक्टिकल भी कोरिलेट करके अपने एंजल इन्वेस्टमेंट डिसीजन को और फाइन ट्यून कर सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। Got it. Great. Thank you. आप टाइप कर देना उसमें चैट बॉक्स में मिशन स्टार्टअप। Yeah. चलिए, बाय बाय, टेक केयर। Thank you so थैंक यू much. वेरी मच।
Thank you so much, guys. I'll just take a couple of more minutes and talk to you about Accelerate, about my background and what we are building. So let me just share a quick deck with you. Sorry. Is this screen visible? Somebody can answer yes, no, maybe. It is. Great, great. Perfect. And ये ऊपर नीचे भी हो रहा है ना, because last time I think कुछ issue हो गया था. Like you can see the entire deck, right? You can't? You can? Okay, perfect. Right. So, guys, very quickly, again, my name is Karan. I'm one of the founding partners of Accelerate. And at Accelerate, we're building these two communities. एक हम एक early stage accelerator बना रहे हैं, which is a 100-day program designed for some of India's best founders to learn from some of India's best unicorn founders. And we help consumer brands build large companies. And at the second end, we're building a super angel community of people like us, where we are trying to democratize angel investing. जहाँ पे हम हर वीक फाउंडर्स के साथ सेशंस कराते हैं. We help you grow your network by doing these sessions. We help you invest in early stage companies. So at Accelerate, we have 3 founding partners. Is this screen visible? It is. Apologies, I go back and forth. Sorry. Yeah, so at Accelerate, we have 3 founding partners. So we have Apoorv, who's the head of startup and VC in Google in India. He's been a best-selling author, angel investor in 200 plus companies. We have Tarun, who's been the founder of TalentGen and Capinity. Capinity is an early stage fund. Karan, the window is not switched, I guess. You might have to. Yeah, thank you. Just 1 second. There's some issue in my thing. Can you see it now? Yeah, thanks. Perfect. So yeah, so there's Apoorv, head of startup and VC at Google in India. There's Tarun, Tarun runs TalentGen, जहाँ पे उन्होंने almost 7,000 लोगों को place किए in leadership positions. He's an angel investor in 50 plus companies. And there's me. I lead marketing for Meta in India. I've been a 2-time founder. Again, personally invested in about 50 plus companies. So like I think हमारे notable investments are Innovate, Stage, RateGain, BlueSmart, Zip Electric, Mukbara, Sheroes, 2CTS, Dukaan, Inc42, Assembly, People. And I had like 11 companies on Shark Tank last year. So essentially, I kind of invest in consumer brands very early and then help them scale. These are some of our visiting partners. So as I said, we're backed by 60 plus unicorn founders, who are our visiting partners in terms of investments, in terms of helping startups grow, partnerships, mentorships. So we have people like Arjun, who's in the consumer space, Ankit Agarwal, who's building Insurance Dekho, Brijesh sir, who runs India Mart, Neeraj Bhargav. He's the only person I think who's built and invested in 5 unicorns. He now runs his own generative AI company. Chakri from Country Delight, Akshay from Shiprocket, Mohit and Malika from Mom's Company, and many, many more. You can see our website. This was our first cohort जो अभी recently खत्म हुआ है जिसमें हमने companies को grow करा था. Again, we had 8 very exciting companies in the consumer space. एक company थी Lia Clothing Co, which actually came on Shark Tank post our cohort, and they got a 4 Shark deal. Again, we were amongst the first investors in the company, now doing about 8 crore revenue. Tractor Factory is largest used tractor platform, doing about 12 crore revenue. FitFeast is a protein first brand. Jay is building the raiment for women in India. So essentially, we have companies across different sectors in the consumer space. And ये हमारा Super Angels platform है. Basically, the goal is for you to learn from the best, invest in the best, and grow together. These are some of our industry partnerships. You can follow us on Instagram, on YouTube, on LinkedIn, on Spotify. I run a podcast with top unicorn founders in the country. And I think so if anybody is interested to join the community, we don't charge any carry, we don't charge any commission. This is not a money making initiative for me. So you can please feel free to ping me. I'll add you to our WhatsApp community. I share weekly deals
where I am investing in companies personally. And essentially, if you are interested, you can also evaluate them. And we can co-invest. We are partners with Amit Singhal RTAF, where we use their platform to invest in companies. And in fact, there is one company that we are investing right now, this deal is live. This company is called Travel Buddy. They're building India's largest travel tech company for solo travelers. So if you're interested, happy to kind of share more. And yeah, agar anybody has any questions, feel free to answer. If you ask, I'm here right now. Otherwise, I'll just leave my coordinates on the chat as well, and happy to connect and collaborate. Perfect. Thank you. Yeah, I think that's the question. Arun, I'm not able to hear you. We will do so next offline, if that's okay. Thank you so much, guys, for joining the session. Thank you for your time. And yeah, super excited to collaborate. You can ping me, call me. Happy to work on this with you guys. Thanks, Ashish, for the kind words. Thank you. All right. Take care.